Hello, dear children. How are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today, I am again back with the explanation of English course book of Standard 8th. The second part. One part I have already explained. So, today we'll begin with the second part of chapter number 9 of literature, that is Blackwood House. So, today we will begin with scene number 2. I hope you would have read scene 1 and understood it properly. In scene 1 I explained you about that how the two characters were there, Mr. Cooper and Dr. Norton. Mr. Cooper is an estate agent and Dr. Norton comes to buy a house, and how they were talking about the price falling and going up, and he wanted to see one house which he liked it, and this Mr. Cooper was denying not to buy that house. And what was the price of that? It was £1,000, and they both went from there to see that house. That time, the same office, an hour later, डॉक्टर नॉर्टन एंड मिस्टर कूपर वॉक इन एंड सिट डाउन. वो घर देखने गए, वहाँ से वापस आए 1 घंटे बाद और दोनों आके ऑफिस में बैठते हैं. And again the conversation begins. Dr. Norton is telling, well, I like the house. It's big enough for me and it's in a very good place. फिर नॉर्टन कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा हाउस है और बहुत ही बड़ा है, मेरे लिए अच्छा है एंड अच्छी जगह पे भी है. Then Cooper is telling, don't buy it. If you do, you will be sorry. I have another house. Then Cooper कहते हैं कि you don't buy it, वो खरीदो मत. अगर आप खरीदोगे तो you will be sorry means here the meaning is given, you will regret your decision, कि तुम्हें अफसोस होगा ये खरीदने के बाद. एंड मेरे पास दूसरा घर है, वो मैं आपको बताता हूँ. तो नॉर्टन इज आस्किंग हाउ मच इज इट, क्या प्राइस है उस घर की, दूसरे घर की. कूपर इज टेलिंग £6,000. तो प्राइस सुन के ही वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड इट. तो नॉर्टन इज रिप्लाइंग, वेल आई कांट अफोर्ड इट. ही इज टेलिंग कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ. आई विल बाय ब्लैकवुड हाउस. हु इज़ द ओनर. तो कहता है मैं वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता दूसरे घर खरीदने के लिए, और मैं ब्लैकवुड हाउस खरीदूंगा. और इसका ओनर कौन है, ऐसा वो पूछते हैं. कूपर सेइस, मिस्टर वार्ली, मिस वार्लीज ब्रदर. कहता है मिस वार्ली का जो भाई है मिस्टर वार्ली, वो इसका ओनर है. बट यू ऑट टू फाइंड अनदर हाउस, देयर्स अ हाउस ऑन पूल रोड. फिर वो कहता है कि उससे अच्छा तुम दूसरा हाउस खरीद लो, वो पूल रोड पे है. देन नॉर्टन इज टेलिंग, आई डोंट वॉन्ट इट. मुझे वो नहीं चाहिए. कूपर रिप्लाइज, लिसन डॉक्टर नॉर्टन, सपोज you buy Blackwood house, then in the middle of the night, every night the white visitor comes into your bedroom. फिर वो कहता है लिसन, सुनो तुम मेरी बात डॉक्टर नॉर्टन, अगर तुम ब्लैकवुड हाउस खरीदोगे देन रात में बीच के टाइम पे, इन मिडल ऑफ द नाइट, हर रात वो वाइट विजिटर आएगा तुम्हारे बेडरूम में. क्योंकि सब लोग ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे वाइट विजिटर आता है. क्यों वाइट विजिटर नाम दिया गया है? क्योंकि ऑलवेज इट वॉज अ वाइट क्लॉथ एंड देन कम्स. देन इज टेलिंग, जस्ट व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 मीन्स 12 बजे. ऑलवेज यू हैव लिसन दैट लिसनिंग अबाउट कि रात को 12 बजे भूत आते हैं. तो सेम वे ही इज़ ऑल्सो टेलिंग कि जैसे ही 12 बजेंगे, विल यू लाइक इट. 12 बजे ऐसे होगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? विल यू बी हैप्पी देयर, क्या तुम खुश रह पाओगे वहाँ पे? कूपर इज टेलिंग हिम. देन बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. दैट इज, आफ्टर हाउ मच टाइम डिड मिस्टर Cooper and Dr. Norton entered the office? I repeat my question. After how much time did Mr. Cooper and Dr. Norton enter the office? Yes, they came into the office an hour later. Now, my second question is, how much money did he say about the another house? I repeat my question. How much money was he telling about the another house? Yes, it was £6,000. Then
वेयर वॉज द अनदर हाउस, what was the location, I repeat my question, what was the location given by Mr. Cooper of the another house? Yes, that is, the house was on Pool Road. Now let's move on to the next page. Then the conversation continues. Norton says, I don't believe the stories. वो कहता है मैं ऐसे घोस्ट की स्टोरीज में किसी में मैं नहीं मानता हूँ. Then Cooper is telling, well, don't come back to me later and say that I didn't warn you. वो कहता है कि बाद में मेरे पास वापस मत आना और कहना मत कि मैंने तुम्हें पहले से ही वॉर्न नहीं किया था. सपोज यू कांट स्लीप देयर, वॉट विल यू डू? और अगर तुम वहाँ नहीं सो पाए तो तुम क्या करोगे? ही इज़ टेलिंग. तो नॉर्टन सेज, सेल इट. तो नॉर्टन कहता है कि अगर मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा, नहीं खुश रहूँगा, तो मैं उस घर को फिर से बेच दूँगा. देन कूपर सेज, माई डियर सर, थिंक. वो कहता है कि तुम सोचो थोड़ा. एवरी वन हियर विल नो दैट यू हैव बॉट ब्लैकवुड हाउस. यहाँ पे सब जो लोगों को पता चल जाएगा कि तुमने ब्लैकवुड हाउस खरीदा है, घोस्ट वाला हाउस खरीदा है. दे विल ऑल्सो नो दैट यू वॉन्ट टू सेल इट. और उनको ये भी पता चल जाएगा कि तुमने खरीदा है और अब तुम्हें बेचना है. आफ्टर यू हैव बीन देयर अ वीक, कि एक वीक वहाँ रहने के बाद अब तुम्हें वो घर बेचना है. दे विल वॉन्ट टू नो वाई. तो वो सब पूछेंगे कि क्यों एक वीक में ही आपको ये घर बेच देना है. देन इफ़ यू डोंट टेल देम, अगर तुम उन्हें नहीं बताओगे, दे विल नो दैट यू हैव सीन द वाइट विजिटर. और अगर आप उन्हें नहीं बताओगे तो उनको पता चल जाएगा कि तुमने वाइट विजिटर को देखा है. नो वन विल गिव यू अ पाउंड फॉर ब्लैकवुड हाउस आफ्टर दैट. और इस तरीका का इंसिडेंट होने के बाद कोई भी 1 पाउंड भी आपको नहीं देगा इस घर के लिए. नाउ दिस हाउस ऑन पूल रोड. और फिर अगेन ही इज़ टेलिंग कि पूल रोड पे जो हाउस है उसके बारे में ही इज़ अगेन स्टार्टिंग. देन डॉक्टर नॉर्टन इज़ टेलिंग, विल मिस्टर वार्ली लेट मी स्लीप इन ब्लैकवुड हाउस फॉर 1 नाइट बिफोर आई बाई इट. फिर उन्होंने एक नया आइडिया निकाला. वो कहते हैं कि क्या मिस्टर वार्ली एक रात को के लिए मुझे ब्लैकवुड हाउस में सोने देंगे, मैं खरीदूँ उससे पहले. देन कूपर सेज, आई डोंट नो बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू. कहते कि मुझे नहीं पता बट ये घर तुम्हारे लिए नहीं बना है, सो तुम ये घर ना लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. नॉर्टन सेज, प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम. नॉर्टन कहता है कि तुम उन्हें एक बार पूछ लो लिख के. इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट आई विल स्पेंड ट्यूसडे नाइट देयर. तो कहता है अगर वो रेडी है एक रात मुझे सोने देने के लिए तो मैं ट्यूसडे रात को वहाँ पे सोऊंगा. कूपर सेज, वेयर विल यू स्लीप? देयर आर नो बेड्स इन द हाउस. ही इज़ टेलिंग कि कहाँ सोओगे तुम, उस घर में एक भी बेड नहीं है. देन नॉर्टन सेज, आई एम एन ओल्ड सोल्जर. मैं एक ओल्ड सोल्जर हूँ, नेवी में थे वो. आई हैव अ स्मॉल बेड दैट आई यूज्ड इन द वॉर. मेरे पास एक छोटा सा बेड है जो मैं वॉर में जाता था तब लेके जाता था मेरे साथ. आई विल टेक इट विथ मी टू द हाउस ऑन ट्यूसडे. और वो बेड मैं अपने साथ ले जाऊंगा. फोल्डिंग बेड जो होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, तो मैं वो फोल्डिंग बेड ले जाऊंगा अपने साथ ट्यूसडे को उस घर में. देन कूपर इज़ रिप्लाइंग, देयर इजंट एनी लाइट देयर. डू यू वॉन्ट टू स्पेंड अ नाइट इन दैट हाउस विदाउट अ लाइट? नो नो माई डियर सर. देन कूपर अगेन वो कहता है कि वहाँ पे अब लाइट भी नहीं है, तो क्या तुम ऐसे घर में रहना चाहोगे जहाँ पे लाइट भी ना हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ही इज़ टेलिंग लाइक दैट. देन नॉर्टन रिप्लाइज, आई हैव अ स्मॉल लैम्प, आई विल यूज़ दैट. नाउ प्लीज़ राइट टू मिस्टर वार्ली एंड आस्क हिम. वो कहते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा लैम्प है, मैं वो यूज़ करूँगा, आप मिस्टर वार्ली को लिख के पूछ लीजिए कि क्या वो मुझे रहने देंगे. देन कूपर सेज, वेल आई विल राइट इफ़ यू विश बट आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक इट एट ऑल. फिर भी कूपर कहता है कि मैं लिख के, अगर तुम आपकी विश है कि आपको वहाँ जाना है, मैं लिख के उन्हें पूछ लूँगा, बट मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है.
Then here scene 2 ends and then scene 3 begins. अ बेडरूम इन ब्लैकवुड हाउस. अब सीन 3 कहाँ स्टार्ट होता है? एक ब्लैकवुड हाउस में बेडरूम है वहाँ पे. इट इज़ 1 minute to 12 ऑन ट्यूसडे नाइट. अब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट की देर है, ट्यूसडे नाइट का समय है. डॉक्टर नॉर्थन इज़ रीडिंग इन बेड बाय द लाइट ऑफ अ स्मॉल लैम्प. और डॉक्टर नॉर्थन, जैसे उन्होंने मिस्टर वैली ने हाँ कह दिया तो डॉक्टर नॉर्थन अपना बेड और लाइट लेके वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे ही इज़ रीडिंग. 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट की देर है. ही इज़ रीडिंग ऑन हिज बेड, और लैम्प की जो लाइट आ रही है उसमें. हिज सूटकेस एंड सम क्लॉथ्स आर ऑन द फ्लोर. एंड वो अपनी सूटकेस भी लेके गए थे और कुछ कपड़े नीचे बिखरे पड़े थे. नॉर्थन इज टेलिंग, लुकिंग एट हिज वॉच, अपना टाइम देखते हुए. वेल इट्स ऑलमोस्ट टाइम, कि अभी टाइम हो चुका है, 12 बजे. द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 o'clock हो चुके हैं. 12 ही इज टेलिंग. नाउ द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम इफ़ शी एवर कम्स. कि अभी मुझे लगता है कि वो विजिटर अगर आता होगा तो वो आती होंगे मिस वेरले, तो वो अभी आनी चाहिए. ही हियर्स अ साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम डोर. और उसे आवाज़ एक सुनाई देती है बेडरूम डोर के बाहर से. व्हाट्स दैट, वो पूछता है क्या है इस आवाज़. देखता है. द डोर ओपन स्लोली एंड क्वाइटली. और धीरे धीरे से, जैसे भूतों के स्टोरी में आवाज़ आती है डोर खुलने की, वैसे डोर खुलता है. व्हाट्स हैपनिंग, वो कहता है ये क्या हो रहा है. ही सिट्स अप, बैठ जाते हैं. समथिंग ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू टो एंटर्स एंड स्टैंड्स नियर द डोर. एक पूरा सा, एक हेड से टो तक पूरा वाइट कपड़ा डाला हुआ है और वो चीज़ वो अंदर एंटर होता है. हु आर यू, व्हाट डू यू वांट टू, पूछता है उनको कि तुम कौन हो एंड तुम्हें क्या चाहिए. तो वो विजिटर रिप्लाई करता है, गो, यहाँ से चले जाओ. देन नॉर्थन सेज, नो आई वोंट, मैं नहीं जाऊँगा. यू गो, आई एम बिजी, आई एम रीडिंग. वो बिल्कुल नहीं डरते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम चले जाओ, मैं बहुत ही बिजी हूँ पढ़ने में अपनी बुक. विजिटर सेज स्लोली विथ लॉन्ग पॉजेज बिटवीन द वर्ड्स. धीरे धीरे, जैसे भूत की आवाज़ आती है ना, वैसे आवाज़ में बीच बीच में पॉज लेते हुए स्लोली बोलते हैं, दिस इज़ माई होम. यू माइट बी थिंकिंग कि ये मैम कैसे बोल रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग टू इमिटेट दैट साउंड. तो ऐसे वो पूछता है कि ये मेरा घर है. यू मस्ट लीव नाउ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए. दिस वे आई एम गिविंग सम इफेक्ट टू दैट साउंड. तो दैट विजिटर इज टेलिंग ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ. यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. हियर इज़ द बेड और छोटी सी लाइट है यहाँ पे. और ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट बेड. यहाँ सूटकेस है और कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे, एंड वो बैठ जाते हैं. ही दिस वन इज़ द विजिटर, सर से पाँव तक वाइट क्लॉथ में ढका हुआ. सो आफ्टर दैट नॉर्थन सेज, गो अवे, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक. वो कहता है नॉर्थन कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे ये बुक रीड करके ख़त्म करनी है. विजिटर फिर से वही साउंड में, फियर इज़ कमिंग टू यू. फियर, वो कहता है कि डर, तुम्हें डर नहीं लग रहा, डर तुम्हारे पास आ रहा है एंड तुम क्यों डर नहीं रहे हो. देन नॉर्थन रिप्लाइज, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता. ही थ्रोज हिज बुक एट द विजिटर एंड द विजिटर मूव्स इट्स हेड आउट ऑफ द वे. वो अपने हाथ में जो बुक रीड कर रहे थे वो विजिटर पे फेंकते हैं और विजिटर वहाँ से अपना हेड घुमा के दूर हो जाता है. हाँ, यू आर अफ्रेड, ही इज़ टेलिंग कि मैं नहीं डरा, तुम इस बुक से डर गए हो. सो डॉक्टर नॉर्थन जम्प्स आउट ऑफ बेड एंड पुल्स द वाइट क्लॉथ ऑफ द विजिटर्स फेस. और तब फिर डॉक्टर नॉर्थन क्या करते हैं, वो अपने बेड से नीचे उतरते हैं और वाइट क्लॉथ को विजिटर के फेस से खींचते हैं. एंड दैट टाइम मिस्टर कूपर, गुड इवनिंग मिस्टर कूपर, हाउ आर यू. और फिर वो कौन होता है, वो वाइट कपड़ा निकालते ही कौन दिखता है, मिस्टर कूपर. और वो कहते हैं गुड इवनिंग मिस्टर कूपर, आप कैसे हो. दैट टाइम कूपर बोलते हैं, वाई डिड यू डू दैट, यू ऑट टू बी अफ्रेड. तो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो डर जाना चाहिए था. दैट टाइम नॉर्थन रिप्लाइज, प्लीज़ सिट डाउन. वो कहते हैं कि तुम बैठ जाओ. मिस्टर कूपर, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के. वेरी काइंड ऑफ यू टू कम, तुम आए मुझे मिलने, बहुत अच्छा लगा.
इट्स रैदर लेट फॉर अ विजिट इजंट इट, वाई डिड यू कम, वो कहता है कि तुम बहुत लेट आए मुझे मिलने, सही बात है कि नहीं। एंड ही इज़ टेलिंग कि क्यों आए हो आप मुझे मिलने के लिए। देन कूपर इज़ रिप्लाइंग आई डिडंट वॉन्ट यू टू बाई द हाउस, ही इज़ टेलिंग कि मुझे ये नहीं था कि तुम ये हाउस खरीदो इसलिए। देन नॉर्थन सेज ओ द प्राइस इज़ ओनली 1000 pound, if I buy a house for 6000 pound you will get more money won't you। वो कहता है कि इस घर का प्राइस सिर्फ 1000 pound है और अगर मैं दूसरा हाउस जो खरीदूँ उसमें 6000 pound का तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, है कि नहीं। देन कूपर इज़ टेलिंग दैट वॉजेंट द रीज़न, कूपर कहता है कि इसलिए मैंने आपको मना नहीं किया था। बट देन नॉर्थन सेज देन व्हाट वाज द रीज़न, नॉर्थन कहते हैं तो फिर क्या रीज़न था। कूपर सेज आई वॉन्टेड द हाउस फॉर माई सेल्फ, कि मुझे ये घर खरीदना था। दैट टाइम नॉर्थन इज टेलिंग वेल वाई डिडंट यू बाई इट, तो फिर तुमने क्यों नहीं खरीदा। दैट टाइम कूपर सेज द प्राइस वॉज फॉलिंग, कि धीरे धीरे ये प्राइस कम हो रही थी इस घर की। आई हैव 200 pounds, मेरे पास सिर्फ 200 pounds है। एंड द बैंक वॉज रेडी टू लेंड मी अनदर 600 pounds, और बैंक मुझे 600 pounds देने के लिए रेडी थी। तो कितना हो जाता, दैट्स 800 pounds, 800 हो जाता। बट द प्राइस इज़ 1000 pound, बट इसकी प्राइस क्या है 1000 pound। आई वॉन्टेड इट टू कम डाउन अनदर 200 pound देन आई कुड बाई इट, वो कहता है कि मैं ये चाहता था कि और 200 pound कम हो जाए तो मैं उसे खरीद लूँ। देन नॉर्थन सेज आई सी दो स्टोरीज वेर हेल्पफुल, वो कहता है इसीलिए तुमने ऐसी स्टोरीज बनाई जो तुम्हें हेल्पफुल थी। वेरेंट दे, पर हैप्स यू स्टार्टेड देम योर सेल्फ, मतलब ये स्टोरीज तुम ही खुद बना के दूसरों को बोल रहे थे ताकि दूसरे कोई ये घर ना खरीदे, और तुम ही सब अगर कोई आता तो उन्हें डराते थे। एंड यू वॉन्टेड मी टू टेल एवरी वन दैट द वाइट विजिटर केम टू सी मी, और तुम चाहते थे कि मैं भी जाके ये बोलूँ कि वाइट विजिटर को मैंने देखा था और वो मुझे देखने आया था। वेल आई कैन टेल एवरी वन द नेम ऑफ द विजिटर नाउ कूपर, अब वॉट नॉर्टन इज टेलिंग कि अब मैं जाके सबको बता दूंगा कि ये वाइट विजिटर कोई नहीं कूपर ही था। तो कूपर कहता है प्लीज़ डोंट टेल एनी वन डॉक्टर नॉर्थन आई विल लूज़ माई बिजनेस, कि आप किसी को जाके मत बताना, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो देन नॉर्थन इज टेलिंग वाई डिडंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर, तो तुमने ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोची, क्यों दूसरों को परेशान करने के लिए ये सब खेल खेला। नाउ गुड नाइट मिस्टर वाइट विजिटर कूपर, और उसको कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, गुड नाइट। आई वॉन्ट टू फिनिश माई बुक एंड गो टू स्लीप, मुझे ये बुक ख़त्म करनी है एंड सोना है। आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो मॉर्निंग एंड बाय द हाउस, गुड नाइट। एंड देन इज टेलिंग मैं कल तुम्हारे ऑफिस पे आऊँगा सुबह और ये घर खरीदूँगा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, गुड नाइट। सो दिस प्ले इज़ रिटन बाय G.C. थॉर्नले। आई होप ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, ये प्ले बहुत ड्रामा इंटरेस्टिंग था, आप लोग को सबको मज़ा आया होगा। सो फर्स्ट आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज what happened, what did Norton tell about staying in Blackwood house? Can anybody tell me? I repeat my question. What did Norton tell about living in Blackwood house? Yes, the answer is he told Mr. Cooper to write to Mr. Verley that could he spend a night in that house before buying it on Tuesday. Then my second question is, what did Dr. Norton reply to Cooper when he said that there is no bed in that house? I repeat my question. What did Dr. Norton tell Cooper when he said that there is no bed in the house? Yes, he replied that he is an soldier and he has a small bed that he was using in the war.
Then my next question is, what reply did Dr. Norton give to Cooper about light? I repeat my question, what did Dr. Norton reply to Cooper about light? He told, yes, the answer is he told that he has a small lamp which he will take with him over there. Then, dear children, my next question is, what time was he telling about the visitor who came in the Blackwood house? What time was the visitor coming? Yes, in the middle of the night by 12 o'clock. Now, my next question is, what was the appearance of the white visitor? I repeat my question, what was the appearance of the white visitor? Yes, something dressed in white from head to toe was the appearance of the white visitor. Now, what was Dr. Norton doing when the white visitor entered the room? I repeat my question, what was Dr. Norton doing when the white visitor entered the room? Yes, Dr. Norton was reading a book when the visitor entered. Then, who was actually there under that white cloth? I repeat my question, who was actually there under the white cloth? Yes, when Dr. Norton removed the white cloth, who was it? It was Mr. Cooper. I hope children you would have understood this chapter properly. So watch both the parts of the video, part 1 and part 2 properly, and read the chapter twice so the story will be more clear to all of you. Thank you, dear children.